यहाँ क्वेश्चन है बाय कंसीडरिंग द फंक्शन x minus 3 into log x show that the equation x into log x is equal to 3 minus x is satisfied by at least one value of x lying between 1 and 3. Means आपके पास this is given function and you have to show that इस इक्वेशन की एक रूट कम से कम एक रूट 1 और 3 के बीच लाई करेगी। देखिए f of x is equal to x minus 3 into log x है। x minus 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। x minus 3 is a polynomial, hence continuous for all x belongs to real number। रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है तो क्लोज इंटरवल 1 से 3 में जरूर कंटिन्यूस होगा। एंड log x is also continuous in its domain, and domain क्या होता है इसका x greater than 0 and x greater than 0 सभी पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस है, hence it will be continuous in closed interval 1 to 3. So fx is continuous on 1 to 3 closed interval because it is product of two continuous functions. जो किसमें कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 1 to 3. 1 to 3 में being product of two continuous functions on 1,3 closed interval, f of x is continuous. सेकंड कंडीशन देखिए f dash x, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दिस इज x minus 3 log x का 1 by x plus log x, x minus 1 का दिस इज x minus 3 का डिफरेंशिएशन 1 and it has finite value for all x belongs to 1 to 3. Hence fx is derivable on open interval a and f3 रखेंगे, फंक्शन ये है x की जगह 3 रखेंगे दिस इज 0 एंड f1 निकालेंगे log 1 0 होता है, दोनों f1 is equal to f3 आ गया। So all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. So there exists at least one c belongs to 1,3 such that f dash c will be 0. f dash c आपने f dash x निकाला है, x की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे c, this is c minus 3 upon c plus log c is equal to 0, log c is equal to 3 minus c upon c, c को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, c into log c is equal to 3 minus c. So यहाँ पर c क्या है? c is root of root of किसका रूट है? दिस इज x into log x minus log x is equal to 3 minus x and c belongs to 1,3 से बिलोंग करता हुआ लिया है। So it is true that this equation will have at least one root between 1,3 open interval. एक क्वेश्चन है using Rolle's theorem show that between any two roots of this equation e raised to power x into cos x is equal to 1, there exists at least one root of this e raised to power x sin x is equal to 1. हमें रोल्स थ्योरम में एक चीज ध्यान रखनी है, जो c लेते हैं हम तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद c लेते हैं ओपन इंटरवल के अंदर, वो c रूट किसकी होती है? डिफरेंशिएशन की रूट होती है, वो उस फंक्शन के डेरिवेटिव की रूट होती है। तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x into sin x plus 1। तो देखिए लेट अल्फा एंड बीटा are two different roots of the given equation e raised to power x cos x is equal to 1। तो e raised to power alpha cos alpha is equal to 1, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां से क्या आ जाएगा? cos alpha is equal to e raised to power minus alpha and e raised to power beta into cos beta is equal to 1, cos beta is equal to क्या आ गया आपके पास? e raised to power minus beta। अब अगर हम फंक्शन कंसीडर करते हैं दिस इज e raised to power minus x minus cos x, e raised to power minus x minus cos x for r alpha beta closed interval के अंदर ये डिफाइंड है। ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए जिनके लिए ये डिफाइंड है। तो फंक्शन f of x is continuous in on closed interval alpha beta being sum of two continuous functions।
क्योंकि यहाँ पर कोसाइन फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो इस इंटरवल में पक्का ये कंटिन्यूअस होगा बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनके बीच एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये फाइनाइट वैल्यू देगा, हेंस एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स डेरिवेबल। थर्ड थिंग, एफ अल्फा रखेंगे, एफ एक्स आपने लिया ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, अल्फा लेंगे ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होगा, एंड cos अल्फा और e raised to power माइनस अल्फा दोनों इक्वल है तो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली f बीटा विल बी 0। thus all the three conditions of RT are satisfied, so there exists at least one C belongs to open interval alpha and beta such that f dash C is equal to 0। f dash C क्या होगा, f dash x के अंदर x की जगह C पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस e raised to power माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। यहां से 1 बाई सी लिखेंगे, इसको ई रेज टू पावर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी ई रेज टू पावर सी इंटू साइन सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सी बिलोंग कर रहा है कहां पर, अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा और बीटा क्या है चीज है, अल्फा और बीटा ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के रूट है। सो इस इक्वेशन को C सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इट इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन e raised to power x sin x minus 1 हैज एट लीस्ट वन रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स है, e raised to power x into cos x is equal to 1। सो इसकी दो रूट्स के बीच में कम से कम e raised to power x sin x minus 1 की कम से कम एक रूट जरूर हो।